What's up, everybody? Welcome back to Original Pagan, my new channel. Today we're checking out 7 immortals from Hindu scriptures. Where are they? This is by Raz by Big Brain Co. I will leave a link down below to the original video, like I always do. This actually is in Hindi. However, there is English subtitles, so I will put the video up and I'll move my head in the top corner so people can see subtitles. This is going to be an interesting video because this is a question I always have, right? Like, I learned recently about Hanuman and all that lot, and if they're immortal, then where are they? That's like a big question, right? And I guess it says in the video that there's 7 immortals from Hindu scriptures that should be still around. So this is going to be a really interesting video. If you haven't already, don't forget to like, comment, subscribe. Helps with that mysterious YouTube algorithm. This is a new channel that I've started that stemmed from my main channel. And so, yeah, let's learn together. Let's enjoy it. Let's have some fun and let's see what it's all about. I am going to move my head up a little bit just because subtitles. Okay, guys? Here we go. इस वर्स को पढ़ने के बाद आप लोगों को इसमें से कई सारे नाम सुने सुने से लग रहे होंगे, राइट? यू नो, आज से कई साल पहले इस धरती पे ऐसे लोगों ने कदम रखा है जो इतने साल बाद आज भी हमारे बीच में मौजूद है। ये लोग कहाँ हैं? ये एक मिस्ट्री जरूर है, लेकिन ये लोग हैं, ये एक सच्चाई है। लेकिन one of the things that I thought was a lot of these characters in Hindu lore, Hindu stories, were more of not so much an actual person, but more of a spirit that has been personified. And that's why I thought it would make more sense for that spirit to be immortal. But for an actual physical being to be immortal, that's a different question, isn't it? सवाल है कि ये लोग कौन हैं और इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जो इतने सालों से ये लोग जीते आ रहे हैं, हमारे बीच में है और हमें पता ही नहीं। तो अगर आपको इमोर्टैलिटी एज अ कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने लिटरली भगवान से, देवों से वरदान पाया है अमर होने का, चिरंजीवी होने का। Interesting. Big Brain Co. Let's go. I like this editing. It's really cool. अश्वत्थामा। महाभारत की अगर बात हो और अश्वत्थामा का मेंशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। गुरुद्रोण के बेटे अश्वत्थामा एक चिरंजीवी, एक इमॉर्टल होने के साथ साथ ही वाज आल्सो वन ऑफ द अवतार ऑफ 11 रुद्रास। गुरुद्रोण एक बेटा चाहते थे और इसीलिए वो तपस्या कर रहे थे, जिसके चलते This is another reason why I need to read the Mahabharata. Is that how I say it? Mahabharata. And I said in one of my previous videos, if I got I haven't ordered it yet, but the book set I'm looking at is by, obviously I need to get a British English translation, but it's by Bibek de Broy. And so if you guys agree that this is a good translation, I will end up getting it. Although look at that price, that's crazy. But hey, it is what, $10? So शिवजी ने खुश होकर गुरुद्रोण को वरदान के तौर पे एक बेटा दे दिया और उस बेटे को चिरंजीवी, अमर होने का वरदान दे दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बच्चे के फोरहेड पे एक ऐसा मणि था, the wearer of which ceased to have any fear from any living beings lower than humans and was even safe from weapons, from hunger, from diseases. लेकिन फिर जब अश्वत्थामा बड़े हुए, he went on to become friends with दुर्योधन, and इस दोस्ती की वजह से और पावर हासिल करने की भूख की वजह से उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की साइड ली। और उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। अपने इमोशंस में बह के अश्वत्थामा ने कुरुक्षेत्र वॉर में इतनी गलतियां कर दी कि कृष्ण भगवान ने उन्हें पनिश करने के लिए उनसे उनका माथे का मणि छीन लिया और उन्हें ये श्राप दे दिया कि उनका ये जख्म कभी नहीं भरेगा। उनकी So this seems like someone who was made to be immortal but almost became corrupt in immortality. पूरी बॉडी लेप्रेसी का शिकार हो जाएगी। इट विल ऑल्सो बी कवर्ड बाय पस एंड अल्सर्स। कृष्ण भगवान ने यह भी कहा कि अश्वत्थामा अपनी पूरी जिंदगी एक रोगी बन के जिएंगे और कोई उनके मदद के लिए नहीं आएगा, कोई उन्हें फूड या शेल्टर तक प्रोवाइड नहीं करेगा, बिकॉज एनीबॉडी हु कम्स नियर हिम विल बी डिस्गस्टेड ऑफ। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि कुछ साल पहले एक थियरी सामने आई थी जिसमें मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने यह क्लेम किया है कि ही हैज सीन अश्वत्थामा। उस डॉक्टर ने यह कहा कि कुछ साल पहले उसके पास एक पेशेंट आया था जिसके सर पे, जिसके फोरहेड पे एक अनयूजुअल सा वुंड था। उसने ये भी बताया कि इतने सारे ट्रीटमेंट और मेडिसिन के बाद भी वो जख्म बढ़ नहीं रहा था। तो एक दिन चेकअप करते करते डॉक्टर ने उस पेशेंट को मजाक मजाक में पूछ लिया कि आपके माथे का वुंड बढ़ नहीं रहा, क्या आप अश्वत्थामा तो नहीं? और बस उसके बाद जो हुआ वो बहुत शॉकिंग था। This guy, and do you know what's really weird? I was about to say this guy's a really good storyteller, which he is.
Isn't it interesting how I don't know the language he's saying, but just through reading and his body language, I'm really enjoying his interpretation of storytelling. I'm a big fan of story. You guys know I'm a big fan of storytelling. You look at all the books behind me. I'm a massive book nerd, right? I love storytelling, both as a reading and also as someone actually telling stories. I think that the art of telling a story is a long lost skill that many people don't have anymore. This guy's got it. डॉक्टर ये क्लेम करते हैं कि जैसे ही उन्होंने ये पूछा, वो इंसान, वो पेशेंट वहां से गायब हो गया। इतना ही नहीं, उसको पूरे स्टाफ में से किसी ने बाहर जाते हुए नहीं देखा। और सिर्फ ये एक थियरी नहीं है, अश्वत्थामा को लेके कई सारी थियरीज एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, ऐसा हुआ होगा? नहीं? कमेंट्स में बता। लॉर्ड हनुमान, जैसे अश्वत्थामा। Okay, this is the one I want to know about the most, Lord Hanuman. महाभारत के लेजेंडरी कैरेक्टर्स में से एक है। वैसे ही लॉर्ड हनुमान रामायण के सबसे बड़े वीर हैं। हनुमान जी श्री राम के सच्चे भक्त थे एंड ही वाज ऑलवेज मेंट टू बी विद। जब रावण सीता मैया को एब्डक्ट करके लंका ले गए थे, उस वक्त श्री राम काफी चिंतित थे, काफी मिजरेबल स्पेस में थे, क्योंकि लंका काफी दूर था और वहां तक का जो फासला था वो काफी कठिन था। लेकिन क्योंकि हनुमान जी उड़ सकते थे, उन्होंने इस लंबे फासले को तय किया। He could fly? Really? Didn't know that. और रावण के महल के अंदर अशोक वाटिका में सीता मैया को ढूंढ लिया। अब इसके बाद कई सारी थियरीज है जो ये बताती है कि हनुमान जी को इमोर्टैलिटी कैसे मिली। कुछ स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जैसे ही हनुमान जी ने सीता मैया को खोज लिया, उनसे ये कहा कि वो राम जी के दूत है, उनके साथी है, तो आउट ऑफ हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड सीता मैया ने उन्हें अमर होने का वरदान दे दिया। इसके अलावा जब रामायण के सारे कैरेक्टर्स को मोक्ष प्राप्त हुई थी, तो उस समय हनुमान जी ने देवों से ये रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें इस धरती पे तब तक रहने दिया जाए जब तक कि इस धरती पे राम जी का नाम लिया जा रहा है। Oh wow! So we can only stay while the name's being chanted. That's really cool. I like that story. Isn't it like so strange to think that these stories are around and that the idea of these beings of immortality are still around? Like the whole idea of immortality is very strange. Like I don't think I would ever want to live forever. I think the inevitable trait that makes us human is the fact that we are mortal. And we try and become the best version of ourselves in such a short amount of time. And that's why we create art and stuff like that, right? That's why we create things. It's because time is finite for us, right? I don't think I'd want to be immortal and see my children get old and see their children get... I don't think I'd want to see that. इसीलिए आज भी अगर कोई सच्चा भक्त राम जी का नाम लेता है, तो हनुमान जी वही पाए जाते हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जब भी इस धरती पे राम कथा होती है, तो उस समय हनुमान जी सबसे पहले आने वाले और सबसे आखिर में जाने वाले इंडिविजुअल लॉर्ड होते हैं। एक और थियरी है जो ये कहती है कि रावण को मार गिराने के बाद जब लोगों ने हनुमान जी से ये पूछा कि आप अपनी लॉयल्टी टुवर्ड्स राम प्रूव करें, तो उस समय हनुमान जी ने अपनी छाती चीर के सबको ये बताया कि उनके मन में, उनके हृदय में राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण बसते हैं। इसके बाद हनुमान जी का ये प्यार देख के, ये लॉयल्टी देख के श्री राम ब्लेस्ड हिम विद इमॉर्टैलिटी। महर्षि वेद व्यास। Okay, but they didn't actually say like where he is now. It's like they're just saying how he got his immortality more than anything. वैसे तो हम हर साल गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि वेद व्यास। महाभारत के ऑथर पराशर और सत्यावती के बेटे महर्षि वेद व्यास रिप्रेजेंट्स इंटेलिजेंस, विजडम एंड विजन। और अगर आप वेद व्यास इस वर्ड को संस्कृत में ट्रांसलेट करो, तो इट मींस द वन हु क्लासिफाइड द वेदास। वेद व्यास जी को विष्णु जी के मेनी ऑफ द अवतार्स में से एक माना जाता है। विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है कि वेद व्यास एक ऐसा टाइटल है जो हर युग में विष्णु अवतार में आए हुए वेदा कंपाइलर को दिया जाता है। आज तक इस धरती पे 28 वेद व्यासास ने जन्म लिया है एंड महर्षि वेद व्यास इज द 24th वन। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास जी ने 3 युगास को एक्सपीरियंस किया है। त्रेता युग जब 3 yugas, isn't that like a long time? Isn't that like hundreds of years? Which is crazy if you think about it. Hundreds and hundreds of years. Which I heard someone say we're in the Kali Yuga right now, which is like the bad one. We're waiting for someone to come and help us out because we're in the bad one. I mean, it makes sense. The world's kind of going to shit right now, doesn't it? एंड हो रहा था तब उनका जन्म हुआ। उसके बाद पूरा द्वापर युग उन्होंने विटनेस किया और उसके बाद कलयुग के कुछ इनिशियल डेज भी विटनेस किए। इसके बाद वेद व्यास जी के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। कई लोगों का ये मानना है कि ही नेवर डाइड, ही कंटिन्यू टू बी इमॉर्टल। कई लोगों का ये भी कहना है कि जो दुनिया में बुरी चीजें हैं, जो वायलेंस है, इसे देख वेद व्यास ने नॉर्थन इंडिया के किसी छोटे से गाँव में जाके रहना शुरू कर दिया। वो आज भी वही है। विभीषण। आप लोगों ने ये कहा
But surely someone would have found him by now, right? कहावत तो सुनी होगी कि 500 उंगलियां बराबर नहीं होती, सुनिए। चलिए मैं आपको इस कहावत का रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। रामायण के दो फेमस भाइयों के बारे में तो आपको पता है, राइट? नहीं, मैं राम और लक्ष्मण के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रावण और विभीषण के बारे में। इन दोनों भाइयों पे जो कहावत मैंने आपको अभी बताई ना, वो एकदम जचती है। जहाँ पे एक भाई पावर, लालच, छल कपट की वजह से बर्बाद हो गया, वही दूसरा भाई अपनी अच्छाई और सच्चाई की वजह से अमर हो गया। विभीषण रावण का छोटा भाई था, और जब It seems like a lot of people get granted immortality by being good or serving, and kind of all these what would you call them, traits of someone who wants to be the best version of themselves, right? Being kind, being of service, all these different things seems to be the one thing that, or the boxes to tick to become immortal, right? रावण सीता मैया को अबडक्ट करके लंका ले आया Also being friends with the gods helps, I think. था, तो वो विभीषण थे जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी, इस एक्ट को अनएथिकल बताया था। लेकिन रावण ने उनकी एक बात नहीं सुनी। इवेंचुअली जब विभीषण को ये समझ आया कि एंड में सच्चाई की जीत होने वाली है, तो उन्होंने राम जी की मदद की। उन्होंने राम जी और वानर सेना के साथ मिलकर सीता मैया को रावण के चुंगल से बचाया। एंड ही प्रूव्ड दैट यू ऑलवेज हैव अ चॉइस टू मेक द राइट डिसीजन। ऐसा कहा जाता है कि जब ये सब खत्म हुआ, तब विभीषण को लंका का राजा घोषित किया गया। एंड ही वाज ब्लेस्ड विद इमॉर्टैलिटी, ताकि वो लंका के लोगों को हमेशा गाइड कर सके ऑन लॉयल्टी, राइट कॉन्डक्ट एंड धर्मा। परशुराम I like that story a lot because it's more about just being a good person, isn't it? परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार है, एंड ही इज आल्सो कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अवतार। परशुराम एक एक्सट्रीमली स्किल्ड वॉरियर माने जाते हैं, उसके साथ साथ सारे अस्त्रास्त्र, शास्त्र और डिवाइन वेपन के मास्टर भी। यही नहीं, वो वन मैन आर्मी के नाम से भी जाने जाते हैं। ही वाज बोर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, एंड ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म दुनिया से सारी बुराई मिटाने के लिए हुआ था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि परशुराम इमॉर्टल है और आज भी हमारे धरती पे मौजूद है। लेकिन क्यों? क्योंकि कल्कि पुराण के अकॉर्डिंग जब कलयुग का अंत होने वाला होगा, तब विष्णु जी अपने आखिरी अवतार में, कल्कि अवतार में प्रकट। That's the one, the last avatar, Kalki avatar. It's the one that's supposed to come back during the Kali Yuga, right? I'm learning, guys. Like, I'm getting there, aren't I? You should be proud of me. I'm working hard here trying to learn this stuff, aren't I? And tab Parshuram will re-emerge as a martial guru. And as a martial guru, he will guide the Kalki avatar on how to use astras, shastras and divine weapons, जिसके चलते दुनिया की सारी बुराई खत्म हो जाएगी। महाबली, जो बलि के नाम से जाने जाते हैं, एक असुरा किंग है और हिंदुइज्म में पाए जाने वाले 3 वर्ल्ड्स, दैट इज त्रिलोका, उसके राजा भी हैं। बलि को देखने के बाद इंद्रदेव, हु इज कंसीडर्ड एज द किंग ऑफ देवास, उनके मन में बलि को लेके एक अनहेल्दी सा एरोगेंस डेवलप हुआ, जिसके चलते वो विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से ये रिक्वेस्ट की कि वो बलि को सबड्यू करें। विद नो अदर चॉइस, विष्णु जी ने वामन अवतार लिया और वो बलि के पास गए, और बलि के पास जाके विष्णु जी ने कहा कि उनके फीट Bali is in the place? Really? के 4 स्टेप से कवर होने वाले लैंड वो उन्हें देते हैं। अब वामन अवतार का साइज देख के बलि ने तुरंत हाँ बोल दिया, लेकिन वो कहता है ना that you should not judge the book by its cover। यहाँ पे वही हुआ। Within the 3 steps, He said he went to Bali, and for some reason I just went automatically like, well, what? You took a flight there, like to that place? But he meant to go and see him. Okay. विष्णु जी के वामन अवतार ने तीनों वर्ल्ड को कैप्चर कर लिया, और उसके बाद बलि हैड नो ऑप्शन बट टू सरेंडर। लेकिन बलि के दिए हुए वर्ड के मुताबिक अभी एक स्टेप बाकी था, राइट? तो विष्णु जी ने बलि से पूछा कि इस लास्ट स्टेप का क्या किया जाए। इस पर विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस बलि नील डाउन होकर उन्होंने अपना सर पेश कर दिया। इसे देख विष्णु जी इतने खुश हुए कि उन्होंने बलि को अंडरवर्ल्ड में तो बैनिश कर दिया, लेकिन उसे एक वरदान भी दे दिया इमॉर्टैलिटी का, मेकिंग हिम अ चिरंजीवी। हर साल एक दिन वो धरती पर आते हैं अपने सब्जेक्ट से मिलने, और उस दिन को एज ओनम सेलिब्रेट किया जाता है। कृपाचार्य Whoa, I feel like there's so many characters in these stories. It's really hard to keep track of who's who and who's doing what and who's where and what's going on. And I think this is why I just need to take the plunge and read the Mahabharata and read specifically read the Bhagavad Gita. महाभारत के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है, और क्यों ना हो, उन्होंने महाभारत के यंग प्रिंस को वॉरफेयर और उससे रिलेटेड टेक्निक सिखाई थी। अगर मैं आपको कृपाचार्य के बारे में कुछ बैकग्राउंड दूं, तो आप लोग ये जान के शॉक हो जाओगे दैट ही वाज नॉट बोर्न फ्रॉम अ ह्यूमन वूम्ब। यस, यू हर्ड मी राइट। इनफैक्ट उनका जन्म हुआ था उनके पिता शरदवान के ग्राउंड पे गिरे हुए सीमेंट से, which made him a really special character. Dropped it on the ground. What was he doing? Why did he drop it on the ground?
थ्रूआउट द महाभारत। मतलब ऐसी बात नहीं है कि महाभारत में और कोई कैरेक्टर नहीं है जो ह्यूमन वूम की जगह एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीकों से पैदा हुआ है, लेकिन ऐसी क्या बात है जो कृपाचार्य को स्पेशल बनाती है? वेल, ये है बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके की पार्शियलिटी को पसंद या प्रमोट नहीं करते थे। ही वॉज अ वेरी डिग्निफाइड पर्सन। कई स्टोरीज ऐसी है जो ये बताती है कि कृपाचार्य को ये पता था कि कौरवों की तरफ से लगी ये युद्ध की आग पॉइंटलेस है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ड्यूटीज फुलफिल की और महाभारत के इस युद्ध में उन्होंने कौरवों की साइड ली, बिकॉज वो कौरव ही थे जिन्होंने कृपाचार्य को बेसिक नेसेसिटीज से नर्चर किया था, जैसे कि खाना, मकान एंड एवरीथिंग। तो फिर क्वेश्चन आता है कि कृपाचार्य को इमोर्टैलिटी मिली कैसे? एक थियरी हमें ये बताती है कि कृपाचार्य का अनबायस्ड और इम्पार्शियल एटीट्यूड देख के कृष्ण भगवान ने उन्हें इमोर्टैलिटी का वरदान दे दिया था। तो ये थे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग वो 7 That was a really, really good video. I really liked that a lot. I feel like I'm starting to learn the characters a bit more. कैरेक्टर्स जो अपनी अच्छाई या फिर अपनी बुराई की वजह से इमॉर्टल बन गए। आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया। I did enjoy the अगर ये वीडियो video. आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप वॉचिंग बिग ब्रेन को। What a great video. This channel, Big Brain Co. Let me go and subscribe. They've got some really interesting videos. They've got a lot of subscribers, 2.7 million. So me telling you to go over there and give it a like is probably not going to even dent on their videos. But geez, they've got some good videos over there. I'm probably going to check out this channel a little bit more over here. Let me know what you think. I feel like I'm just starting to put some pieces of the puzzle together and understand things a little bit more. I'd love to know your thoughts. If you've got any more information to help me out, help me go into a certain direction, please let me know in the comment section down below. I love the comments that you guys leave. I usually read at least the first 24, 48 hours worth of comments. So please comment down below. I'm very excited to see what you have to say. Until next time, I love you all. Have a wonderful day. Goodbye.